So hey there, this is the email I received yesterday only. So first I'll read that aloud to you. So it starts with I hope you are doing well. I am writing this email because I have been carrying a lot of thoughts and struggles in my mind, and I haven't been told to share them with anyone. I feel very low and alone these days, and I wanted to reach out to someone who might understand. I failed to clear JEE mains in advance, and my performance in college is not up to the mark. Recently, during Navratri, when people were celebrating together, I felt completely out of place and alone. I have always felt a bit different, and sometimes it feels like no one truly notices or understands me. There's a girl I liked since class 8. We used to talk in class 9, but for some reason, she stopped talking to me. Now I see her daily in the bus, but I don't have the courage to talk to her. Most of the time, I just want to be alone, even though I wish I had someone to share my thoughts with. I'd stayed in a residential school from class 6 to 12, Navodaya Vidyalaya, but even there I often felt ignored by friends. I don't understand what I'm leaking. I don't have a best friend in whom I can share my feelings or frustrations. Sorry, I guess I repeated that. I really want someone I can trust and open up to without hesitation. I am now uh, in my third year of my BTech, and the placement session is approaching. Sorry, placement season is approaching. The pressure about my future is overwhelming. I even got selected for a government exam, but I failed in the document verification process, which made me feel extremely disappointed. On top of that, my financial condition is very weak, which makes everything feel heavier. I feel I am always remain a loser. So I'm reaching out to you because I feel like I need someone who can listen and maybe guide me. Even just a little advice or kind words would mean a lot. I just wanted to share my story honestly, as keeping it inside has been very hard for me. Thank you so much for taking the time to read this sincerely Anna's name. So this is the email I've received yesterday only. And see, एक चीज़ मैं I really want to say is that कि I am just too young to give advice to someone who is much like older than me, right? मैं बहुत मैं बहुत बच्ची हूँ किसी को भी इस कुछ सी भी फेयर में एडवाइस देने के लिए बिकॉज़ जिन्होंने मुझे ईमेल भेजा वो ऑब्वियसली उन्होंने मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अबाउट लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग राइट. So I'm not no one to give advice to anyone out here, but just I wanted to like what I have figured out in the whole scene and is that कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में आके एफर्ट्स करना भूल जाते हैं, राइट. या हम एफर्ट्स कर भी रहते हैं तो वो प्रेशर हमको इतना ज़्यादा फोर्स कर देता है कि वो एफर्ट्स हमारे सक्सेसफुल ही नहीं होते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल नाउ. लेट्स से कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं राइट, जनरली जब कोई भी नई चीज़ हम कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम उसे नॉर्मली करते जा रहे हैं या चीज़ें सही से होती जा रही हैं. बट कभी कभी वो बीच बीच में वो तुम्हारी मिस्टेक्स या हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हमको ऐसे हिट करते हैं, और बस उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हमें सेल्फ हेट डेवलप होती है और भी बहुत सारी चीज़ें. अ, मतलब मैं अपनी लाइफ का भी एक एग्जांपल दूँगी कि आई वाज़ इन माय क्लास 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर, और एकेडमिक्स में ऐसा सेट कि 10th से तो क्या ही बात करें. तो 12th में 21st फ़ैब को हमारा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था, और 8 दिन पहले आई गॉट मच स्ट्रेस. आई वाज़ टेलिंग माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली इज़ दैट कि देखो यार, 12th है ना, तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ का रिज़ल्ट होता है. तो मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ में जो भी जितनी भी अचीवमेंट्स की है, 12th का रिज़ल्ट हर एक इंसान पूछेगा, और तुम ये नहीं कर पाओगी. आई वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा. और मुझे आई गेस जितनी चीज़ें आती थी मैंने वो भी नहीं किया. मैं मेरे स्कूल में थी, रेजिडेंशियल स्कूल में. वहाँ मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई. प्रिंसिपल ने मुझे कैबिन में बुलाया, वहाँ मुझसे बात की. 10 टीचर्स ने मेरी पर्सनल काउंसलिंग किया और मुझे बोला कि तुम घर जाओ मत, जाओ यहीं रहो और कर लोगी, हो जाएगा. एंड आई सेड नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ तो एहसास ही नहीं आ रही थी स्कूल में. आई केम होम. घर से मैं सेंटर गई, वहाँ एग्ज़ाम दिया, और हर एग्ज़ाम के पहले मुझे रोना आया है.
हर एग्ज़ाम के पहले पेपर देखने से पहले मुझे रोना आया, मुझे वो एंग्ज़ायटी अटैक्स आए हैं। मेरे हाथ में पेन था बट वो पेन आधे पेपर में रुक गया, हाफ़ रही हूँ, पानी की बॉटल 2 बॉटल पी गई और सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बार-बार उस पेपर को लिखते टाइम वो प्रेशर था कि तुमसे नहीं हो पाएगा या नहीं हुआ तो क्या करोगे, राइट? तो कभी-कभी ना हमारी पास्ट मिस्टेक्स जो होती हैं लाइफ़ की या बहुत सारे ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, जो हमको हमारे प्रेज़ेंट को बहुत अफ़ेक्ट करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उन सब प्रॉब्लम्स को अलाउ करते हैं हमारे प्रेज़ेंट को अफ़ेक्ट करने का। लाइक सी अभी मेरे लिए जेईई के एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ 11th-12th का कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं है ना या इतना वो टॉप ऑफ द लेवल नहीं है ना कि अब मैं जेईई में इतना अच्छा कर पाऊँ। एंड बस 5 महीने ही हुए हैं मुझे इसके लिए प्रिपेयर करते हुए, तो पहले तो मुझे बहुत अडैप्टेबिलिटी लगी उसके लिए अडैप्ट होने के लिए और फिर फर्दर उसको करने के लिए, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि मेक योर माइंड इफ पॉसिबल आउट ऑफ दिस प्रेशर वाला चीज़। बिकॉज अगर ये प्रेशर आप लेते रहोगे तो वो बार बार आपको ट्रिगर करते रहेगा और एट द लास्ट में हमारा मेंटल पीस ही हार्म होगा, राइट? अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं सो दैट्स नॉट लाइक उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, राइट? उसमें आपका फॉल्ट नहीं है बट अब आप आगे खुद की लाइफ को ऐसा ना बनाए, वो आपके हाथ में। जस्ट अ मिनट यार, फ्लैश ऑन हो गया। हम्म, तो अब आगे आप नहीं बनाए तो वो आपके हाथ में है, राइट? सो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, यू सेड अबाउट के कंपनी से अप्रोच करने वाली कैंपस को, तो उसके लिए आई गेस आप किसी प्रोफेसर को रीच आउट करो, उनसे आप एडवाइस लो कि कैसा क्या होता है और आप उसमें लाइक उनसे जानो कि क्या होता है इंटरव्यूज़ में, कैसा करना है। और अभी भी यू हैव टाइम, राइट? द कंपनीज डिडंट अराइव्ड येट, क्या लाइक अब वो आगे अराइव करने वाली, तो अभी भी यू गॉट टाइम, अभी भी आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर जब आप करोगे सो जस्ट pour your heart to it और just give your very best। और सी यार, कभी कभी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ लोग आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को ना देख के आपकी पर्सनालिटी या आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपको कहीं ना कहीं सेंस कर लेते हैं, तो आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, राइट? बट अभी हम उस चीज़ पे लेके स्ट्रेस कर रहे हैं कि आई यूज टू बी सो अलोन इन माई लाइफ और एवरीथिंग। सो सी देयर इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल शूटिंग दिस वीडियो कि लाइफ में कोई नहीं रहता यार। लाइक अभी तक आई हैव सीन, मतलब आगे आई डोंट नो अबाउट दिस बट लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ चीज़ है, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग मिले आपकी लाइफ में या लोगों से आपकी लाइफ चलती है। पता है, आई ऑल्सो यूज टू डिमीन माई सेल्फ बहुत ज़्यादा। लाइक जितना मैंने अपने आप को सेल्फ हेट्रेड, मतलब मैंने जितना सेल्फ डेफरेट, जितना खुद को डिमीन किया है, जितना ज़्यादा सेल्फ हेट्रेड डेवलप किया है, उतना आई गेस किसी ने भी नहीं किया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। मतलब इट वॉज ऑन दी अनदर लेवल, ऑन दी टॉप लेवल। और उससे मैं कैसे बाहर आई हूँ वो बस मुझे ही पता है, राइट? सो हम जितना ज़्यादा डिमीन करते जाएंगे ना खुद को, हमको चीज़ें उतनी ज़्यादा ट्रिगर करती जाएगी और हमको हम खुद भी उतना ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी। वेल, सो सी, as you said, you don't have people, you don't have friends to talk to, so you got this place, right? अभी मैं आपका ईमेल जो आपने सेंड किया उसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट, तो वहाँ भी जिन लोगों को लगेगा वो आपको हेल्प कर देंगे, या जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखा है, डू हेल्प हिम। आप उनको बताइए कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड जस्ट लाइक सी यार, मेरे पास ही नहीं है कुछ कहने को। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। सो या, दिस इज़ फॉर आई गेस टुडे। आई रिसीव्ड एन ईमेल, सॉरी टू द पर्सन, मुझे लेट हो गया वीडियो शूट करने में। सो या, this is it for this video. uh, People, please help this man to succeed in his life. And just to the person who have sent me that email, थैंक यू, आपने मेरे साथ शेयर किया। इस वीडियो के थ्रू मैंने हम सब के साथ शेयर किया। और और क्या बोलूँगी मैं, or you have got this place, right? So you can easily post what goes into your mind here, and there would be so many people who will be helping you out here, right?
So, yeah, to everyone who has watched this video till now, thank you for stopping by because no one really did. This is the field day.